it is? Does it remind you of someone? Probably not if you haven't read Macbeth yet. This was the taper held by Lady Macbeth during the famous sleepwalking scene. That's what the root cause is. You don't relate with the characters, you just cram the things and write it down in your answers. But where is your opinion in that? Where are your critical comments? What is your contribution in that answer? What do you think about that character? What are your opinions? What is your perspective? Hey everyone, welcome back to my channel. And here you will get an ultimate guidance how to score 95 above in your literature. Let me give you all a brief intro about me. I'm Mavleen Kaur. I have scored 95% in my class 12 IAC board and I have scored 98 in English. That probably means that I have scored more than 98% in my literature. That's why I'm shooting this video, because during my preparation I lacked this guidance. I came to know about the things on my own, but I don't want you to suffer. As you know that in IAC board, literature is divided into three parts. First we have a play, that is Macbeth. Then we have Prism, that is collection of short stories. Then we have Rhapsody, that has collection of poems. This video is also divided into two parts. First I'll be discussing Prism and Rhapsody, then I'll be discussing about the play Macbeth. So let's start with Rhapsody, the poems. So let me break it down into 4 steps. The first step is you have to read the textual part. मुझे याद है 10th में we never read that textual part. Just our teacher used to teach us from the workbook. She used to just give us the answers and we crammed that answers and write it down in the exams and got full marks. But this is not how it works. You have to read the textual part first. So if your teacher is skipping this part, you are making a biggest mistake, because textual part is the most important part to read. First of all, you have to read this box. Then you have to go to the textual part. I have opened telephone conversation here. As you can see that I have almost filled the whole space with my critical comments for each line. So how you have to cover this? You should know, first of all, you should know the meaning of each and every word in this textual part. You should know what poet is trying to convey. हर एक पोम में हमेशा 2 मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के. आप मानो या ना मानो, I have noticed it. Let me give an example. The poet has used a phrase, wavelength adjusted. Now here, he doesn't mean that he is adjusting wavelength of a light. He literally means here that he is adjusting the chain of thoughts which are going on in his mind. What to reply to that lady? So he chose the word West African sepia. It does not only highlights his identity, but it highlights pride for his heritage. In this way, you have to cover the whole poem. मैंने भी ऐसे किया था. That's why I have wrote कितने सारे meaning लिखे हुए हैं मैंने words के. If you are facing difficulty in it, the second step is going to help you out. पहले तो आप एक खुद read करो एक बार. मुझे पता पहली बार की रीडिंग में पोम का कुछ समझ नहीं आता. These poems are not simple. These poems are very complex. So the second step is watch video, that is poem explanation video by T.S. Sudhir sir. He makes the best content for English literature and language. If you are missing out his content, I bet you're not going to score much. He has helped me a lot. Even in my class 10th, I have scored 98 in literature. It was just because of him, because I was not getting enough guidance from my school. I haven't read even a single page of textual part. But when I came across his channel, उन्होंने बताया कि how important it is to read this textual part. So if you are going to read it and if you watch his explanation video, he also covers poetic devices in his video, the important poetic devices. But I'll suggest you all कि आपको हर एक लाइन में जो भी poetic device यूज़ हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए.
अगर आप ये वीडियो बहुत एंड में आके देख रहे हो देन जस्ट डू दोज पोएटिक डिवाइसेस, लेकिन अगर आप पहले देख रहे हो ये वीडियो तो आपको सारे कवर करने पड़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि ये MCQ के टाइप में भी आ सकते हैं। दैट दे विल गिव यू अ लाइन, दे विल जस्ट आस्क विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, सो यू शुड नो द पोएटिक डिवाइसेस। अब सर की वीडियो आप देख रहे हो, जैसे जैसे सर किसी भी वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, कोई भी वर्ड बता रहे हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, जस्ट राइट दैट वर्ड, राइट दैट वर्ड। देखो मैंने कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, एंड आई हैव यूज ऑल दीज वर्ड, ऑल दीज फ्रेजेस इन माई आंसर्स। एग्जामिनर को आपका आंसर कुछ अलग दिखना चाहिए बाकी बच्चों से, सो यू हैव टू ऐड दीज फ्रेजेस, दीज वर्ड्स इन योर आंसर। जो भी सर बता रहे हैं यू जस्ट राइट इट डाउन, दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर रिविजन्स। फिर उसके बाद आप सर की वीडियो देखने के बाद यू कैन रीड योर वर्कबुक, वहाँ पे बहुत सारी थीम दी होती है, कैरेक्टर्स के बारे में दिया होता है, जस्ट गो थ्रू देम। द थर्ड स्टेप इज़ यू शुड नो हाउ टू फ्रेम द आंसर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये सब कुछ चीज़ें, टेक्सचुअल पार्ट तो नहीं लिख के आना सीधा, यू हैव टू फ्रेम एन आंसर। एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर ही लिखना है पेपर में, सो यू शुड नो हाउ टू फ्रेम एन आंसर। अगर तो आप क्लास 11th में हो, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होता है 50 वर्ड्स के आंसर से सीधा 150-200 वर्ड्स के आंसर लिखने पे आ रहे हो। हमारे साथ ऐसा होता था कि वी जस्ट रोट द होल समरी ऑफ द स्टोरी और पोम, और उसके लिए एक भी मार्क्स नहीं मिलता। लेट मी रिमाइंड यू, यू हैव टू राइट रेलिवेंट आंसर। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। पहली बात, हाउ यू हैव टू स्टार्ट एन आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन से उठा के आंसर नहीं लिखना है। Let's say the question is why Lady Macbeth was going through her emotional turmoil. Usually आप आंसर कैसे स्टार्ट करते हो? मुझे पता है 10th में हम ऐसे ही करते थे, The Lady Macbeth is going through her emotional turmoil because, then you are going to write the things. But no, this is not how you have to start your answer. कुछ नया लेके आओ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्टिंग करो, क्योंकि जैसे एग्जामिनर आपका आंसर रीड कर रहा है स्टार्टिंग वाली लाइन, he or she should know that you are different. आपको अलग दिखना है, थोड़ा आपको थोड़ा हटके लिखना है आंसर, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलेंगे। लाइक यू कैन स्टार्ट इन सच अ वे दैट लेडी मैकबेथ वॉज टोटली शैटर्ड एंड हर स्टिफल्ड हार्ट वॉज पोरिंग आउट। इन दिस वे यू कैन स्टार्ट योर आंसर, कुछ नया। यू हैव टू ऐड कोट्स इन योर आंसर। नाउ व्हाट आर दीज कोट्स? Like in telephone conversation, if they ask you any question about the white lady, you should add quotes like she was a wealthy lady, she was self-centered, of course. These comments, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ that she was self-centered, she was wealthy. ये मुझे कैसे पता चला? From this phrase, ये आपको reference ये देनी है उन्हें, like lipstick coated, gold, long gold rolled cigarette holder pepped. You have to add these phrases in quotes. ये तुम ऐड करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा दैट यू नो द थिंग्स, यू हैव रेड द टेक्सचुअल पार्ट। अगर ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अब कोट्स कैसे याद करें? कोट्स अब हम रट्टे मारें? नहीं, बहुत टाइम है अभी कोट्स याद करने के लिए। बार बार रीड करो चीज़ों को, टेक्सचुअल पार्ट को बार बार रीड करोगे तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएंगे कोट्स। एक बार रीड करो, 2-3 बार रीड करो, फिर एक बार लिख लो, बस एक बार बस लिख लो सारी कोट्स, जो इंपॉर्टेंट कोट्स तुम्हें लगती हैं, जो तुम आंसर में ऐड कर सकते हो। सेल्फ कन्फेशन, लिपस्टिक कोटेड, प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, ऐसी कोट्स जो तुम ऐड कर सकते हो आंसर में, एक बार लिख लो बस। बस एक बार एक जगह लिख लो, कंसाइज कर लो चीज़ों को, तुम्हें एंड में बहुत हेल्प करने वाली है। आई एम टेलिंग यू। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन चैनल जहाँ से मैंने 11th में आंसर फ्रेमिंग सीखी थी। इस चैनल का नाम है स्टडी विद मोमिता एंड सोमी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर कमेंट्स में अटैच कर दूँगी। बेस्ट चैनल, आपको इस चैनल से आंसर फ्रेमिंग आ जाएगी। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, पोम्स से रिलेटेड, शॉर्ट स्टोरीज जितनी भी, सब कवर किया हुआ है, सबके आंसर्स लिखे हुए हैं। आप एक बार इनका आंसर देखना। मैं ये नहीं कह रही कि ये कॉपी करके आ जाओ, नहीं, एक बार इनका आंसर देखो, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे मैम पूरा समझाते हैं हाउ टू ऐड कोट्स, कहाँ पे कोट्स ऐड करनी है। ये नहीं कि पूरा तुम कोट्स ही ऐड करके आ रहे हो, कहाँ पे अपना क्रिटिकल कमेंट ऐड करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वो मैम ने। सो आई जस्ट थॉट दैट इट माइट हेल्प यू ऑल। तुम देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है। ऐसी बोल बहुत एक्यूरेट आंसर्स बनाए हुए हैं मैम ने, बहुत सही।
और 11th में मैंने इनका ही चैनल फॉलो किया था। मैं ये कॉपी नहीं करती थी इनके आंसर्स, मैं जस्ट जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी ना, जैसे कि ये वर्ड अच्छा यूज़ किया मैम ने, मैं एक जगह लिख लेती थी। मैंने यहाँ पे मैं ऐसे कहीं भी लिख लेती थी या फिर अलग से नोटबुक पे लिख लेती थी। पूरा कॉपी तुम्हें भी नहीं करना। पहली बात तो ये, आंसर कॉपी करना छोड़ दो। अगर तुम कॉपी करके लिख रहे हो आंसर, उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, अपनी एक आंसर में अपनी झलक समझ लो दिखनी चाहिए। पता चल जाता है एग्जामिनर को क्या कॉपी है और क्या खुद से लिख रहा है बच्चा। अब मैं ये नहीं कह रही तुम फैंसी वोकेबलरी यूज़ करो। मेरी मेरी वोकेबलरी बहुत सिंपल थी आंसर में। आई होप आई हैड दैट आंसर स्क्रिप्ट। मैं तुम्हें बताती, मैंने बहुत सिंपल वोकेबलरी में लिखा है। मैंने आंसर की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ फैंसी वर्ड्स का यूज़ किया, नहीं। वर्ड लिमिट में लिखा है, कोट्स ऐड की हैं, अपना एक ओपिनियन दिया है आंसर में, एंड दैट्स इट। एग्जामिनर यही देखते हैं और कुछ भी नहीं देखेंगे। तो एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि तुम वर्ड लिमिट के अंदर ही आंसर लिखो, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर इतना रीड भी नहीं करेंगे। तुम्हें कम वर्ड्स में लिखना है, जितने वर्ड्स हैं उतने वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। उसकी पेनल्टी भी हो सकती है तुम्हें। स्टेप 4 ये है कि तुम्हें आंसर फ्रेमिंग आ गई, अब खुद से आंसर लिखो। जब तक तुम खुद से आंसर नहीं लिखोगे, अपने ओरिजिनल आंसर्स नहीं लिखोगे, तुम्हें नहीं आएंगे। प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, खुद से आंसर लिखो। एक चीज़ याद रखना, वोकेबलरी चाहे सिंपल रखो, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए आपके आंसर में। आंसर लिखोगे तो तुम्हें आएगा। अपनी वर्कबुक से क्वेश्चंस देखो और प्रैक्टिस करो, आंसर लिख के खुद प्रैक्टिस करो। जो आपके टीचर हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ नहीं ठीक हो रहा, क्या रेलिवेंट आंसर तुम लिख रहे हो या नहीं। टेस्ट होते हैं, टेस्ट दो। एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और आंसर्स लिखो। अपनी मिस्टेक्स देखो, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, क्या मिस्टेक आ रही है। कोट्स नहीं ऐड कर रहे हैं, अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर रहे, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। अपनी मिस्टेक्स को जानो और उन पर इम्प्रूवमेंट करो। ऐसे ही होगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मैंने ही स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट आंसर्स लिखती थी, बाकी क्लासमेट से थोड़ा सा बेटर आंसर्स लिखती थी, क्योंकि आई जस्ट केम अक्रॉस दिस चैनल। मैंने रिसर्च करना शुरू की, मैंने एफर्ट्स लगाए, तभी इम्प्रूवमेंट आई। एफर्ट्स लगाओगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यही थे 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे, यू विल सक्सीड। बहुत अच्छे आंसर्स लिखोगे। बस इन 4 स्टेप्स को पक्का फॉलो करना। आते हैं प्रिज्म में। देयर इज़ अ होल स्टोरी। स्टोरी आपको पता है, यू कैन राइट आंसर। पोम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सर की वीडियो देखोगे समझ जाओगे। प्रिज्म, इसके लिए भी मैं ये 4 स्टेप्स आपको सेम स्टेप्स बोलूँगी। फर्स्ट यू जस्ट गो थ्रू द स्टोरी। स्टोरी एक बार रीड कर लो। देखो, अब स्टोरीज़ में ना छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, यहाँ से उठ के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तुम्हें ये डिटेल्स भी याद रखनी है, वो कैसे याद होगी। बार बार स्टोरी रीड करोगे, खुद ही याद हो जाएंगे। हाईलाइट कर लो। जब भी तुम रीड करते हो ना, जैसे सेकंड या थर्ड टाइम रीड कर रहे हो, खुद सोचो कि एग्जामिनर कैसे कैसे यहाँ से कुछ एमसीक्यू बना सकता है, कैसे यहाँ से कुछ असर्शन बन सकता है। खुद तुम ऐसा सोचो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर बस वो चीज़ को अंडरलाइन कर लो। जब तीसरी चौथी बार रिवाइज़ करोगे तो सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स देखो जो इम्पोर्टेंट है। मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने बहुत एंड में जाके प्रायोरिटाइज़ किया था एकेडमिक्स को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो मैंने ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, आई अटैच इट। ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अब चैप्टर बहुत बड़ा है, डिटेल्स बहुत सारी हैं। एक जगह मैंने कंसाइज कर ली थी सारी डिटेल्स, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत अजीब है, लेकिन मैंने लिटरेचर के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने एक जगह कंसाइज कर ली थी, एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से ये, क्योंकि हैं चैप्टर्स में डिटेल्स, हैं लंबे चैप्टर्स, लेकिन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। फर्स्ट स्टेप यही है, रीड टेक्सचुअल पार्ट। सेकेंड स्टेप, सर की वीडियो देखो। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है, सर नहीं, तुम्हें कोई वर्ड का अभी भी डाउट है, यूज़ चैट जीपीटी। उस वर्ड के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम अपना ओपिनियन इसमें क्या दो, इसमें क्या करेक्टर क्या फील कर रहा है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, जबकि सुधीर से सब पूरा बता देते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा लग रहा है तो यूज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे वो पूरा पैराग्राफ डालो और जो भी तुम्हें क्वेश्चन है वो लिखो, पूरा आंसर आ जाएगा। बहुत हेल्पफुल है, चैट जीपीटी का पूरा यूज़ करो इसमें। थर्ड स्टेप, आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए।
और उसका भी मैंने बता दिया है, सेम प्रिज्म जैसे मैंने बताया तुम्हें कैसे आंसर फ्रेम करना है वैसा ही सेम। तो फोर्थ स्टेप इज़ तुम्हें खुद का आंसर लिखना है। ये फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम तीनों स्टेप कर लोगे, फोर्थ नहीं करोगे, दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। देखो 11th में हो तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आई नो द थिंग्स हैव चेंज्ड। तुम्हें एक छोटे से आंसर से इतना बड़ा आंसर लिखना है, और तुम्हें क्वेश्चंस का भी समझ होना चाहिए। यू हैव टू ऐड योर ओपिनियन। ज़रूरी नहीं है जो टेक्सचुअल पार्ट है वही तुम्हें वर्कबुक वाला रट के लिखना है, नहीं। यू हैव टू एक्सप्रेस योर पार्ट इन दैट आंसर। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करो, आराम से मार्क्स आएंगे तुम्हारे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ISC, दैट इज़ द प्ले, मैकबेथ। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि व्हाट यू आर लैकिंग एट, you don't care about the characters, you don't care about the things which are going on, you just cram it and write it. This is not going to work. हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी दैट वी वो यूज टू प्रिपेयर द प्लेस। आप भी ऐसा अपने टीचर्स को आइडिया दे सकते हो दैट वी वांट टू डू अ प्ले, वी वांट टू डू मैकबेथ। इससे तुम्हें चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। जब तुम स्क्रिप्ट प्रिपेयर करोगे तुम देखोगे चीज़ों को, समझोगे, और ये लॉन्ग रन के लिए तुम्हें याद हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर आपके स्कूल में ऐसे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती है, देन आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम अ टीचर कि तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है। मेक टीम्स, प्रिपेयर करो एक्ट के लिए, तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये, अगर तुम ये पैराफ्रेज वाली बुक इग्नोर कर रहे हो तो भाई तुम नहीं 90+ भी स्कोर नहीं कर सकते। तुम्हें ये बुक कोई 5, 6, 10 बार रीड करनी है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि मेन एक्ट में हो क्या रहा है, हाउ कम यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। सबसे पहले मैं वही सेम चीज़ बोलूँगी, पैराफ्रेज रीड करो एक बार। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, सुधीर सर के लेक्चर्स हैं, वहाँ से एक बार देखो, सीन वाइज लेक्चर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो एक बार। वैसे मैंने लेक्चर्स देखे नहीं थे सर के, मैकबेथ मैंने खुद ही प्रिपेयर की थी, मैंने लेक्चर्स नहीं देखे थे बिकॉज इंटरेस्टिंग है ये, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं खुद पढ़ती थी, कुछ चीज़ें अंडरलाइन करती थी, खुद अपने ओपिनियन सेट करती थी करेक्टर्स के लिए। ये तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, सर ने एक लास्ट में एग्ज़ाम से पहले एक सीरीज़ लाए थे सर, मतलब बहुत कंसाइज करके चीज़ें बताई हैं सर ने कि हर एक करेक्टर का क्या पर्सपेक्टिव है, हर एक करेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है हर एक सीन में, वो देख लो। वहाँ से जो वर्ड्स सर ने बताए हैं वो एक जगह लिख लो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप अपने आंसर में वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आपको आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है तो just go through this channel, study with Momita and Somi. Amazing channel, amazing answers, amazing content. और मैकबेथ को तुम सुपरफिशियली रीड मत करो, समझो, फील करो क्या हो रहा है मैकबेथ में, फील करो, रिलेट करो, अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करवाओ चीज़ों को। यू शुड नो दैट हाउ इविल डीड्स डू नॉट हैव गुड एंडिंग, हाउ इविल डीड्स लीड टू डेटोरेटिंग एंडिंग्स। अपने ओपिनियंस लाओ। तुम्हें क्या लगता है, इतना एम्बिशियस होना ठीक है? तुम्हें क्या लगता है ये इवल डीड्स करके इतनी ऊपर पहुंचना ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। तुम ऊपर ऊपर से रीड कर लोगे और एग्ज़ाम के आने से पहले वर्कबुक एक बार समरी रीड कर लोगे और कुछ भी टेढ़े मेढ़े आंसर्स लिख लोगे, नहीं, ऐसे नहीं चलता। कोट्स की बात आई, बहुत इंपॉर्टेंट है कोट्स ऐड करना, जो भी करेक्टर्स की लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने एक जगह ना कंसाइज कर ली थी चीज़ें। मैंने हर एक एक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स थी मैंने एक जगह लिखी हुई थी। जब तुम एक बार लिखोगे ना, तुम्हारे हाथ की प्रैक्टिस होगी ना, तुम्हारी कुछ कुछ तो मसल मेमोरी बनेगी तुम्हारी, कुछ तो तुम्हें याद होगा। एक बार रीड करो फिर लिखो एक जगह। ये जो तुम लिखोगे ना, ये नोट्स बनाओगे, ये तुम्हें एंड में काम आएंगे। कभी कभी नहीं मन करता, अगर तुम 3, 4 बार रीड कर लो बुक तो हो जाता है, थोड़ा मन नहीं करता फिर से रीड करने का, तो तुम वो कोट्स देख लो। ऐसा तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि स्लीप वॉकिंग सीन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सीन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एक्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज़ आई थी उसमें सर ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए थे और उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आए भी हमें। लेकिन लेडी मैकडफ ये बहुत एक साइड करेक्टर था, इनका बस एक ही सीन था, लेकिन वो क्वेश्चन आया हमें। हमें तो ये भी क्वेश्चन आया जो वॉर के दौरान जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वहाँ पे, जो न्यूज़ बता रहे थे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द बैटल फील्ड, इसका भी क्वेश्चन आया। और मैंने ये वाला ही अटेम्प्ट किया था क्योंकि सुधीर सर ने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने वो प्रिपेयर किया था उनकी सीरीज़ से। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लिटरेचर के पेपर में प्रेपरेटरी हॉलीडे मिला था हमें।
लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज के बाद सीधा लिटरेचर। तो इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरे एक्ट रीड करोगे। एक जगह नोट्स बना लो, प्रिज्म के, रैप्सडी के और मैकबेथ के इम्पॉर्टेंट कोट्स जो है ना, जो तुम अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, एक जगह नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा। बस उसका रिवीजन करके यू कैन गिव योर एग्ज़ाम। क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, इतना टाइम होगा ही नहीं कि तुम पूरे टेक्सचुअल पार्ट रीड करोगे। स्टोरीज़ भी बहुत लंबी है, स्टोरीज़ छोटी नहीं है। मैकबेथ के एक्ट भी बहुत लंबे हैं, छोटे नहीं हैं, नहीं होगा एक दिन में। ऐसे तुम पूरा नहीं रिवाइज कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक जगह कंसाइज करके कीवर्ड्स लिख लो, कोट्स लिख लो एक जगह। आई थिंक मैंने इस वीडियो में लिटरेचर का सब कुछ कवर किया है। कॉपी मत करो आंसर। एग्जामिनर को पता चल जाता है कौन सा आंसर स्टूडेंट खुद लिख सकता है और कौन सा आंसर कॉपीड है गूगल से। तो खुद का आंसर लिखना सीखो, खुद का आंसर बहुत बहुत बेटर है गूगल से, ये भी चीज़ समझो। हाँ, मुझे भी कभी कभी फोमो होता था। मेरे साथ जो कुछ बच्चे थे, दे यूज्ड टू राइट अमेजिंग आंसर विद फैंसी वोकेबलरी। मुझे ऐसा लगता था कि हाउ विल आई स्कोर गुड, मेरे पास तो इतनी फैंसी वोकेबलरी नहीं है, मैं तो इतने फैंसी वर्ड्स ही नहीं यूज़ करती अपने आंसर्स में, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लिखती नहीं हूँ। लेकिन नहीं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर आउट ऑफ द बॉक्स वोकेबलरी, दे आर लुकिंग फॉर योर ओपिनियन, दे आर लुकिंग व्हाट डू यू फील अबाउट दैट कैरेक्टर, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट स्टोरी, what are your perspective. They're looking for that, not your fancy vocabulary that you are going to copy from Google. जो एक क्वेरी है, you can write it down in the comment section. मैं सबका रिप्लाई करूँगी. That's it for this video. I'll meet you in the next one. तो खुद को कम मत समझो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, ट्रस्ट करो खुद पे, हो जाएगा, सब हो जाएगा. That's it. 헤어나지 못했어. I don't wanna wake up, just wanna back up. 우리가 함께 टेक्सचर पास कर लिया होगा, इतने सारे टेस्ट दे दिए होंगे, सब कुछ हो गया होगा. सर जो भी लास्ट में सीरीज लाते हैं ना, वो देख लेना. इट विल सेव यू, इट विल सेव यू. तुम्हारा अच्छा स्कोर बन जाएगा. आई रियली वॉन्ट टू थैंक सुधीर सर. उनकी वजह से ही मैं बहुत अच्छे मार्क्स आए लिटरेचर में और लैंग्वेज में. मेरा अपना हार्डवर्क भी था, लेकिन उनकी गाइडेंस भी थी. Do follow him. Either you are in 10th, 11th or 12th, follow him. He's an amazing teacher.